1947 میں پاکستان ٹیلی گراف اینڈ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ قائم ہوا۔ 2 سال بعد 1949 میں یہ پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف ڈپارٹمنٹ کے طور پر ابھرا اور 1962 میں اسے پاکستان ٹیلی فون اینڈ ٹیلی گراف ڈپارٹمنٹ کا نام ملا۔ ادارہ پورے ملک میں رابطے کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے تھا، لیکن گلگت بلتستان اور کشمیر کے پہاڑ، برف اور سخت موسمی حالات نے اسے وہاں پہنچنے سے روک دیا۔ 1976 کا سال اہم رہا جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اس دشوار گزار علاقے کا دورہ کرنے آئے۔ وہ کچھ ہی دیر کے لیے رابطے میں رہ سکے اور اچانک مکمل طور پر رابطہ منقطع ہو گیا۔ چونکہ یہ علاقہ اسٹریٹجک طور پر نہایت اہم تھا، 2 دہائیوں کی ناکافی سروس کے بعد وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ فوج کو یہاں رابطے کی ذمہ داری سونپی جائے۔ آئیے پہلے جانتے ہیں ایس ای او کیا سروسز دے رہا ہے۔ ایس فون آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں واحد لینڈ لائن سروس فراہم کرتا ہے۔ ایس کام جی ایس ایم شہری، دیہی اور سیاحتی علاقوں میں موبائل نیٹ ورک کی وسیع کوریج دیتا ہے۔ بی ایل ایل فون سروس پہاڑی علاقوں کے لیے قابل اعتماد وائرلیس فون سروسز دیتا ہے۔ ایس نیٹ ڈی ایس ایل، براڈ بینڈ ڈی ایس ایل، وائی فائی، فائبر اور سی ڈی ایم اے کے ذریعے انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ ڈیجیٹل کراس کنیکٹ، بینکنگ اور کارپوریٹ ڈیٹا کے لیے ہائی اسپیڈ کنیکٹیوٹی دیتا ہے۔ لانگ ڈسٹینس اینڈ انٹرنیشنل سروسز وی او آئی پی ٹیکنالوجی کے ذریعے بین الاقوامی اور ملک کی کالز فراہم کرتی ہیں۔ ڈومیسٹک پرائیویٹ لیز سرکٹس بڑے ٹیلی کام آپریٹرز کے لیے مضبوط بیک ہال نیٹ ورک مہیا کرتے ہیں۔ ایس پیسہ دور دراز علاقوں میں رقوم بھیجنے، وصول کرنے اور یوٹیلیٹی بلز ادا کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ اسمارٹ ٹی وی او ٹی ٹی ڈیجیٹل انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی سروسز فراہم کرتا ہے۔ قراقرم ہائی وے جی ایس ایم کنیکٹیوٹی قراقرم ہائی وے کے طول و عرض میں موبائل نیٹ ورک فراہم کرتا ہے۔ ایس کام کی جو ہمارا ٹاور لگا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے ہم بات کر سکتے ہیں۔ ایس کام کی جو سروس ریشیا میں آئی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ ہم مطلب دنیا سے جڑ گئے ہیں ایس کام کی سروس کی وجہ سے۔ ایس سی او جو ہے کمپیوٹر لیبز سرکاری اسکولوں میں بنا رہا ہے، جو کہ اس کا اپنا کام نہیں ہے، لیکن وہ جو یہاں سے کما رہا ہے وہ آزاد کشمیر میں لگا رہا ہے۔ کمپیوٹر لیبز بن رہی ہے، چھوٹے سٹارٹ اپ بزنس کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ اس طرح کے 50 آئی ٹی سینٹرز نے بنائے۔ اس میں مین چیز یہ تھی کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا، ان کو جگہ مہیا کرنا اور ایک ایسا انوائرمنٹ ان کو دینا جس میں لائٹ کا مسئلہ نہ ہو اور جس میں انٹرنیٹ کا مسئلہ نہ ہو۔ تو ایس سی او نے اس طرح کے کافی سٹارٹ اپس لیے ہیں اور لوگوں کو اس سے بہت فائدہ بھی ہوا ہے، اور لوگ اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے آن لائن بزنس کافی اچھے رن کر رہے ہیں، اور جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں اور وہ اب اس کو جنریٹ کر کر لوگوں کو اپرچونیٹیز بھی دے رہے ہیں، مزید لوگ ان سے جڑ رہے ہیں اور اس سے بہتری ہو رہی ہے ہماری ریاست میں بھی اور ریونیو بھی جنریٹ ہو رہا ہے۔ تو اس پر میں ایس سی او کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزید بہتری کی بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپٹک فائبر وغیرہ اب آئے گی، اور ہمارے انشاءاللہ آزاد کشمیر میں 5G کا ایس سی او بھی لانچ کرے گا۔ اس سب پر میں ایس سی او کو مبارکباد دوں۔ اہم پروجیکٹس میں ایف ٹی ٹی ایچ سروسز ان اے جے کے این جی بھی شامل ہیں، جن کے ذریعے 14,000 کنیکشن سے تیز رفتار انٹرنیٹ اور خدمات گھر تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ پاکستان چائنا او ایف سی فیز 1 کے تحت 820 کلومیٹر زیر زمین اور 172 کلومیٹر فضائی فائبر سے بین الاقوامی ڈیجیٹل لنک قائم کیا گیا۔ آئی پی بیس ویسٹ ہب دور دراز علاقوں میں کنیکٹیوٹی کے لیے سیٹلائٹ ہب فراہم کرتا ہے۔ ہائبرڈ پاور سسٹم 437 ٹیلی کام سائٹ پر کاربن کے اخراج میں کمی اور بجلی کی بچت کو یقینی بناتا ہے۔ کے ایچ سیملیس کوریج شتیال سے پنجاب تک 4G 3G موبائل نیٹ ورک فراہم کرتا ہے۔ ایس سی او ڈیٹا سینٹر پروجیکٹ بینکنگ، تعلیم، صحت اور پرائیویٹ سیکٹرز کے لیے عالمی معیار کا ٹائر 3 ڈیٹا سینٹر فراہم کرتا ہے۔ ایس سی او مائکرو ویو بیک ہال پروجیکٹ مشکل ٹیرین والے علاقوں میں بیس مائکرو ویو بیک ہال فراہم کرتا ہے۔ پاکستان چائنا او ایف سی فیز 2 راولپنڈی سے گوادر تک 8,000 کلومیٹر میں فائبر پروجیکٹس پر مشتمل ہے۔
NGM Space 3 के तहत AJK और GB के पुराने GSM ब्रॉड नेटवर्क को 3G और 4G में अपग्रेड किया जा रहा है। SEO के सोशल और अवामी फ़वाइद में रूरल कनेक्टिविटी शामिल है, जिसके तहत दूर दराज इलाकों में मोबाइल, वायरलेस और इंटरनेट सर्विसेज फराहम की जाती हैं। तालीमी सहूलियात के ज़रिए स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों को ऑनलाइन तालीम और तहकीक में मदद मिलती है। सियाती तरक्की के लिए कराक्रम हाईवे और दीगर सियाती मुकामात पर नेटवर्क फराहम किया गया है। डिजिटल माली खदमात एस पैसा के ज़रिए रकूम भेजने, वसूल करने और बिल्स अदा करने की सहूलत फराहम की जाती है। सेहत व हस्पताल सहूलत में टेली मेडिसिन और मरीज़ों की सहूलत शामिल है। मुलाजमतें और हुनरमंदी के मौक़े IT नेटवर्किंग और डिजिटल सर्विसेज में फराहम किए जाते हैं। DGSU ने रियलाइज़ किया कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी पोटेंशियल है IT के लिहाज से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका टैलेंट जो है वो अनटैप्ड जा रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे IT फैसिलिटीज़ की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। उसको मद्देनज़र रखते हुए एक हम लोगों ने हब एंड स्पूक मॉडल के ऊपर STPs और फ्रीलांसिंग हब्स का एक नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश की। हमारा टारगेट था कि हम 50 ऐसे IT सेटअप्स क्रिएट करें जो कि यूथ को इनेबल कर सकें, ताकि वो अपने लिए अर्निंग भी क्रिएट कर सकें और IT के वर्ल्ड के अंदर अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। इसका विज़न DGSU के विज़न के मुताबिक SEO फ्रीलांसिंग हब जो कि AJK और GB में 50 कंप्लीट करने थे, उसमें से एक नोबल फाउंडेशन को दिया गया, जिसका बैकग्राउंड ये था कि ये बड़ी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी थी जिसके लिए कभी भी AJK में काम नहीं हुआ। तो DGSU के विज़न के मुताबिक इनको फ्रीलांसिंग हब दिया गया और उस फ्रीलांसिंग हब को एक्सटेंड करके इसी फैसिलिटी को ILC बनाया गया। ILC में इनके लिए डेडिकेटेड ऑफिस स्पेस के साथ साथ आर्ट एंड डिज़ाइन रूम एंड फिजियोथेरेपी रूम, ताकि इन लोगों को कहीं और ना जाना पड़े अपने किसी भी काम के लिए। माहौलियाती इक़दामात के तहत हाइब्रिड पावर और ग्रीन एनर्जी से कार्बन के अखराज में कमी की जाती है। इमरजेंसी कम्युनिकेशन कुदरती आफात या हंगामी हालात में फौरी राब्ते को यकीनी बनाता है, जबकि मसावी और शमूलती खदमात हर तबके और इलाके तक यकसा फराहमी को मुमकिन बनाते हैं। SEO बतौर CSR इक़दामात में तालीम के शोबे में गिलगित में इंक्यूबेशन सेंटर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोविड-19 के दौरान मुफ्त ऑनलाइन तालीम और इंटर्नशिप प्रोग्राम शामिल हैं। सेहत के शोबे में ईजी शिफा कियोस्क, फ्री मेडिकल कैंप, मुफ्त अद्वियात और व्हील चेयर्स फराहम की जाती हैं। नौजवानों के खेल के लिए पेंटिंग और फोटोग्राफी, नुमाइशें, बैडमिंटन, क्रिकेट, पोलो, स्कीइंग, साइकिल रेस और दीगर खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं। माहौलियात के लिए शजरकारी मुहिम, सफाई मुहिमात और सोलर तवानाई से चलने वाले BTS टावर शामिल हैं। गुरबत फलाह के लिए एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत नक़द इमदाद और एस पैसा के ज़रिए दूर दराज इलाकों में सहूलत फराहम की जाती है। SEO दूर दराज और मुश्किल इलाकों में खदमात फराहम कर रहा है। सख्त जोग्राफियाई और मौसमी चैलेंजेस के बावजूद AJK और GB को मुल्क और दुनिया से जोड़ने में अहम किरदार अदा करता है। SEO ने दूर दराज इलाकों में कामयाबी हासिल की है। मौजूदा माली मॉडल गैर तिजारती बुनियादों पर मबनी है। आमदनी सरकारी खजानों में जाती है और नए मंसूबे या अपग्रेडेशन के लिए खुद सरमायाकारी नहीं कर सकता, इसलिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने और खदमात को वसी करने में ताख़ीर होती है। SEO को अपने माली मॉडल को जदीद और तिजारती बुनियादों पर अपडेट करने की ज़रूरत है, ताकि कम से कम मुनाफा के मॉडल के तहत खुद सरमायाकारी करे, खदमात को मज़ीद इलाकों तक फैलाए और जदीद ICT सहूलियात की मुस्तकिल फराहमी को यकीनी बनाए। ऐसा कदम SEO की इस्दाद बढ़ाने और मुकामी कम्युनिटी के लिए बेहतर और मुस्तकिल खदमात का ज़रिया बन सकता है। आइए जानते हैं एक इंजीनियर से। जहाँ तक मोबाइल सर्विसेज जो है फराहम करने की बात है, वहाँ जो मेन लैंड के अंदर जो अदर मोबाइल कंपनीज जो सर्विसेज दे रही हैं, उनके लिए इतना ये एक चैलेंजिंग काम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोई हिली टेरेन नहीं है। बिल्कुल जो है किसी भी जगह पे साइट सेलेक्ट करके वो अपना टावर इंस्टॉल करके लोगों तक सर्विसेज जो है ना वो मैक्सिमम आबादी तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारे इस एरिया के हिसाब से AJK के अंदर, क्योंकि ये खेली और माउंटेनियस रेंज है, यहाँ पे सर्विसेज पहुंचाना एक बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि सबसे बड़ा मेन इशू ये है कि यहाँ पे साइट सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, माउंटेनियस रेंज है। यहाँ पे एग्जैक्ट जो है ना वो एक ऐसी जगह आइडेंटिफाई करना, ऐसी जगह जो है ना लोकेट करना जहाँ से हर
तरफ से आबादी को कवर किया जा सके या मैक्सिमम आबादी को कवर किया जा सके, वो एक बहुत मुश्किल काम है। एक टावर अगर मेनली इंस्टॉल की जाए किसी की भी सिटी में जहाँ पे रोड एक्सेस भी हो और जो है ना एरिया भी इस तरह का हो जहाँ पे लॉजिस्टिकली इश्यूज़ ना हो, तो वहाँ पे 2 से 3 महीने। लेकिन क्योंकि AJK का अंदर का एरिया जिस तरह पहले मैंने बताया कि ये एक हिली और माउंटेनियस रेंज है, यहाँ पे क्योंकि बेस जो टावर की होती है तकरीबन 20 बाई 20 और 20 फुट जो है ना उसकी डेप्थ भी होती है, तो इस हिसाब से इतनी बड़ी डिगिंग और इसको प्रिपेयर करने के लिए जो है ना मशीनरी क्योंकि वहाँ पे पहुँच नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे रोड की एक्सेस नहीं होती और सारी चीज़ें जो मटेरियल है वो थ्रू म्यूल ट्रांसपोर्ट जो है ना वो वहाँ तक ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। तो इसमें जो एक टावर जो हिली एरिया में लगाने का जो टाइम लगता है तकरीबन 5 से 6 महीने, ऑलमोस्ट डबल ऑफ जो है ना वो मेन लैंड जो है ना उसके हिसाब से जो है ना यहाँ पे AJK के अंदर जो टावर ऑपरेशन के साथ साथ ना इसकी मेंटेनेंस की भी एक कॉस्ट है, एक बड़ा कम्प्लेक्स और कम्बरसम प्रोसेस है। यहाँ पे हमारे जितने भी टावर लगे हैं वो आइसोलेशन में लगे हुए हैं, मतलब आबादी से काफ़ी दूर लगे हुए हैं। मेन लैंड में अगर आप देखें तो जो टावर्स होते हैं वो आबादी के अंदर लगे होते हैं और वही चौकीदार वगैरह उसको मैनेज कर रहे होते हैं और उसको ऑन ऑफ कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि AJK के अंदर जो साइट सेलेक्ट की जाती हैं हिल टॉप पे, तो वो वहाँ पे जो है ना वो हमें अलग से अपने रिसोर्स वहाँ पे बिठाना पड़ता है, क्योंकि वो आइसोलेशन में साइट्स होती हैं। वहाँ पे उनको चलाने के लिए फिर हमारी टीम है जो है ना जो मैन पावर है वहाँ पे तकरीबन हर डेट पे 2 बंदे जो है ना वहाँ पे रहते हैं, उनकी भी एक कॉस्ट है। दूसरा जो है ना वो चीज़ें जिस तरह साइट को चलाने के लिए जनरेटर है तो उसका फ्यूल जो है और फ्यूल जो है साइट पे ले जाने के लिए जो लॉजिस्टिक यूज़ होती हैं उसमें भी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। उसके अलावा टावर्स की मेंटेनेंस क्योंकि फाइबर कनेक्टेड है उसकी मेंटेनेंस भी जो है ना उसकी भी एक अच्छी भली कॉस्ट है जो टीम्स हमारी मेंटेनेंस कर रही हैं। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इतने टफ टेरेन में काम करने वाले जो बंदे होते हैं उनकी भी एक ह्यूमन जो कॉस्ट है वो भी इन्वॉल्व है इसमें। तकरीबन जो है ना इस वक्त तक सिंस 1976 मोर देन 60 जो है ना वो हमारे टीम मेंबर्स जो है उन्होंने अपनी जो है ना वो जानें कुर्बान की हैं जो है कम्युनिकेशन लोगों को फ्राहम करने के लिए।